Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is English for grade 3. We are going to start Unit 9. Its title is Domestic Duties and Chores. First, we'll discuss the SLO-based lecture to begin for this unit, and then we'll discuss what this unit is all about. So, in Lecture 1, under the title of grammar, we are going to learn about modal verbs, and we'll complete the SLO to identify and use may and may not for seeking permission and prohibition. Next, we'll again learn about modal verbs, and we'll cover the SLO to demonstrate the use of verb can and cannot to show ability and inability. In Lecture 2, we'll learn about stress and intonation patterns, and we'll cover the SLO to recognize stress. We'll focus on stress for this lecture, and intonation pattern we'll learn later, and differentiate among them and use in statement and questions. In next lecture, again under the title of stress and intonation pattern, we'll learn to recognize and intonation patterns and differentiate among them as used in statements and questions. Lecture 4, under the title of Read and Think, we'll learn how to read a pie chart, and we'll cover the SLO read information in a picture graph we'll do next day, and pie chart we'll do first. Again, under the title of Read and Think, we'll learn about picture graph, and we'll cover the SLO to read information in a picture graph. Pie chart we have already done yesterday. So in Lecture 6, we'll start reading and understanding of this beautiful poem, and we'll cover the SLO to apply critical thinking to interact with text using intensive reading strategies while reading to locate or scan specific factual information to answer short questions based on the text. Copy and take dictation of familiar words studied in the class. Lecture 7A, under the title of Oral Communication Skill, we'll learn how to exchange routine greetings, and we'll cover the SLO to demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to exchange and respond to routine greetings and courtesies. Lecture 7B, under the title of Oral Communication Skill, we'll learn how to follow instructions and directions, and we'll cover the SLO to use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize, and use some formalic expressions to respond to simple instructions and directions. Lecture 8A, under the title of Writing, we'll learn how to fill in the speech bubbles, and we'll cover the SLO to write guided sentences in speech bubbles and cartoon strips using vocabulary, tone, style of expressions appropriate to the communicative purpose and context. In next lecture, under the title of Writing, we'll learn how to write a rebus story, and we'll cover the SLO to use appropriate vocabulary and tense to write a simple guided paragraph by replacing rebus with the words to complete a given story. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO-based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. The title of this unit is Domestic Duties and Chores. What does it mean? बेटा इसका मतलब है घर की जिम्मेदारियां और छोटे चोर्स कहते हैं छोटे छोटे काम जो हम हर रोज करते हैं, राइट? और ये अपने काम खुद करना एक अच्छी बात है. इस द डिग्निटी ऑफ लेबर. जो काम हम खुद कर सकते हैं वो हम किसी से क्यों करवाएं, राइट? सो वी शुड डू. ये छोटे छोटे काम जो हमें हर रोज करना होते हैं, हमें वो खुद से करने चाहिए. ये इस ब्यूटीफुल पोएम का मैसेज है. आप देखते हैं कि पोइट ने इसको कैसे डिस्कस किया. He says, I wash myself and brush my teeth, comb my hair and spray beneath. So सबसे पहला काम उठते ही क्या करना है? शावर लेना है, नहाना है और अपने दांत साफ करने हैं. उसके बाद अपने बाल प्रॉपरली, अपने बालों को आपने ब्रश करना है, अपने बाल आपने बनाने हैं और स्प्रे करना है. कोई भी क्लोन, बेटा बच्चे बहुत ज़्यादा
परफ्यूम्स वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन मार्केट में अच्छे बच्चों के लिए अच्छे क्लोथ्स वगैरह अवेलेबल हैं। यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, ठीक है, जो वो आपको अलाउ करें, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि आप पूरा दिन फ्रेश रहें और बहुत अच्छा, you smell good, okay, all right. So I put on some clothes, socks and shoes and wander about the whole household dues. तो उसके बाद मैं अपने कपड़े पहनता हूँ, जूते और जुराबें पहनता हूँ, और फिर मैं जो घर के ड्यूज यानी जो काम है जो मेरे ऊपर लाजिम है करना, उनके बारे में सोचता हूँ। तो क्या मतलब हुआ कि बेटा हम अपने पूरे दिन में जो हमने काम करने होते हैं उनको दिन के आगाज में ही प्लान कर लेते हैं। ये नहीं क्या भागो ये करना है अब क्या, नो, इन द मॉर्निंग वी शुड नो कि आज हमने क्या क्या काम करने हैं, उनको हम लिस्ट भी कर सकते हैं और उनके बारे में हम पहले से प्लान भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द पोएट इज सजेस्टिंग अस, ओके। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आई से माई प्रेयर्स एंड ऑल्सो मेडिटेट एंड रेस्ट अ व्हाइल इन अ पीसफुल स्टेट। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी नमाज अदा करता हूँ, वेरी गुड, ये तो सबसे पहले है ना। और उसके बाद मेडिटेट होता है, बेटा कुछ देर के लिए आप खामोशी से बैठ जाते हैं, इन अ पीसफुल रेस्ट अ व्हाइल इन अ पीसफुल स्टेट, बिल्कुल पुरसुकून होकर आप अपने एक्चुअली नमाज के बाद, और बेटा ये बहुत अच्छा है अगर हम नमाज के बाद जाए नमाज पढ़ी बैठकर खुद को जस्ट थिंक नथिंग एंड अपने ब्रेन को आपने रेस्ट देना होता है कि आप, बिकॉज ये बहुत नेचुरल है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो कुछ देर के लिए हमने कुछ भी नहीं सोचना, ये होती है मेडिटेशन, ओके। ये पोइट हमें बता रहे हैं कि नमाज पढ़ने के बाद वो मेडिटेट करते हैं। आई स्वीप द फ्लोर्स एंड मूव देम टू वैक्यूम द कारपेट एंड क्लीन द लूप। इसके बाद वो क्या करते हैं, अपने घर का फर्श की झाड़ पोंछ करते हैं, यानी झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, और जो कालीन है उनको वैक्यूम से साफ करते हैं, और अपने वॉशरूम, लू इज अ वर्ड जो कि वॉशरूम्स के लिए यूज होता है, इसके बाद अपने टॉयलेट को, अपने वॉशरूम को साफ करते हैं। आई हैव सम ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड लेटर ऑन प्रिपेयर फॉर द इवनिंग। मैं सुबह के टाइम अपना नाश्ता करता हूँ, और बेटा नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं सुबह सुबह, बिकॉज हमें पूरा दिन एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को हम कहाँ से लेते हैं, अपने फूड से, तो हमें बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, राइट। दिस इज़ हाउ पोएट इज सेइंग कि मैं अपना नाश्ता करता हूँ और फिर अपने शाम के लिए कुछ तैयार करता हूँ कि शाम में मुझे क्या करना है। आई चेक फॉर एनी मील एंड ब्रिंग इट ऑल, देन कंसिडर व्हाट टू थ्रो इन द बिन। मेल ये वाली मेल है बेटा, ये ना घरों के बाहर अब तो इतने नज़र नहीं आते, लेकिन ये मेल बॉक्स लगे होते हैं जिसमें आपकी कोई भी ख़त हैं, आपके बिल हैं, वो इसमें डाल देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फिर मैं जाकर उसको खोलता हूँ और अंदर लेके आता हूँ। अब उसमें क्योंकि कभी कभी उसमें जो पब्लिसिटी वाले पोस्टर्स फ्लायर्स वगैरह आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि फिर मैं उस पर देखता हूँ, आई कंसीडर व्हाट टू थ्रो इन द बिन। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं फेंक देता हूँ, और जो काम की चीज़ें हैं, जो काम की मेरे मेल होती है, उसको मैं रख लेता हूँ। आई रीड एंड राइट अबाउट व्हाट इंटरेस्ट मी। फिर मैं अपने जो मुझे पसंद होता है उसके बारे में पढ़ता भी हूँ और लिखता भी हूँ। एंड इफ़ नेसेसरी गो ऑन अ शॉपिंग स्प्री। और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें खरीदने के लिए होती हैं तो फिर मैं खरीदारी के लिए चला जाता हूँ। आई कट द ग्रास एंड ऑल्सो ट्रिम द एजेस। मैं घास को काटता हूँ और उसके जो एजेस होते हैं यानी उसके जो किनारे होते हैं उनको कुतर देता हूँ। क्लियर द डस्ट अवे फ्रॉम द विंडो एजेस। और जो मेरे घर में गर्द वर्द होती है खिड़कियों पर, उनको मैं साफ करता हूँ। सो बेटा आपने देखा कि कितनी बरकत है दिन में, कितने ज़्यादा काम शायर ने बताया कि वो करते हैं, राइट। तो हम तो इतने काम नहीं करते, लेकिन हमें बहुत काम करने चाहिए बेटा, अपने छोटे छोटे काम। आई अंडरस्टैंड आप अभी छोटे हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो रूटीन के छोटे छोटे काम हैं, अपने कपड़े फोल्ड करना, अपनी वार्डरोब सेट करना, अपने जूतों को प्रॉपर रखना, अपने बैग को ऑर्गेनाइज करना, इवन अपनी सॉक्स अब आप खुद वॉश कर सकते हैं, अपने जो हैंकरचीफ आपके रुमाल वगैरह, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, और किचन में मामा की हेल्प कर सकते हैं, टेबल सेटिंग में। बेटा ये छोटे छोटे काम करने से एक तो हमें कॉन्फिडेंस आता है,
हमारे लिम्स एक्टिव होते हैं। और दूसरा ये है कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सुन्ना है। बेटा वो अपना हर काम खुद करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और हमें जो बड़े काम हैं उनको करना भी सीखना है, ताकि जब हम बड़े हों तो हम हर काम खुद कर सकें। तो अभी इट्स द राइट टाइम, ठीक है? मामा के साथ, बाबा के साथ घर में कामों में हेल्प करें, इवन गार्डनिंग में, कार वॉश में, घर की सफाई में, डस्टिंग में, सब चीज़ों में आप हेल्प कर सकते हैं। और ये जो घर के काम हैं उनकी इम्पोर्टेंस हमें ये एक खूबसूरत आयत से पता चलती है। सूरा अश-शुरा वर्स 7 and 8। So when you have finished your duties, then stand up for worship, and to your Lord turn your attention. अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें और उन्हें कह रहे हैं व्हेन यू हैव फिनिश व्हाट, आपका पूरे दिन का जो स्केड्यूल है, तो आपके जो पूरे दिन के काम हैं उनको जब आप ख़त्म कर लें तो फिर दोबारा से अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ रात को तहज्जुद पढ़ते थे। तो ये उनकी उस वर्शिप की बात हो रही है। लेकिन बेटा इसके साथ देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ये नहीं कह रहे कि दुनिया के काम छोड़ दें, आप कोई जिम्मेदारी पूरी ना करें और सिर्फ इबादत करें। नो, यू हैव टू डू एवरीथिंग। और उसके साथ आपका पूरा जो स्केड्यूल है वो नमाजों के गिर्द होना चाहिए कि फजर के बाद हमने स्कूल जाना है, स्कूल से आकर हमने जोहर के बाद थोड़ा सा नैप लेना है, उसके बाद हमने उठकर असर से पहले होमवर्क करना है, असर के बाद थोड़ा, दिस इज हाउ वी शुड प्लान आवर डे। और यही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो बेटा हमारा हर काम इबादत होता है अगर हम उसको इबादत के साथ प्लान करें, राइट? तो दिस इज अ ब्यूटीफुल सुन्ना ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हमने अपनाना है, अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करना है, घर के काम भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, खेलना भी है, हर काम हमने नमाजों के वक्त के दौरान, यानी नमाज से, इस नमाज से पहले और इस नमाज के बाद, इस तरह से हमने इंशाअल्लाह प्लान करना है। तो अल्लाह ताला हमारे वक्त में भी बरकत देते हैं और अल्लाह ताला हमारी सलाहियतों में भी बरकत देते हैं, राइट? तो जो अच्छी बातें आज हमने सीखी हैं इनको अपने जहन में रखना है, खुद भी अमल करना है, दूसरों के साथ भी शेयर करना है। That's it for today. कल इंशाल्लाह ग्रामर के लेक्चर से हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। So thank you and अल्लाह हाफिज।